So let's have once again the review of the idea that is conveyed to us through this story. As I told you already, that in this story the writer wants to convey us that every man who is involved in the wrong activities, may be criminal or any type of wrong actions, there is something, the circumstances or the situation or the environment that compelled that person to go to that wrong line or on the wrong track. Beta, all of you, please keep yourself mute. Let me finish the chapter today. So, if we show sympathy, love, and attachment to that person, that goodness that prevails in every human being comes out. कि अगर किसी इंसान की अच्छाई जो है वो ख़त्म हो जाती है तो उसकी अच्छाई को दोबारा जगाया जा सकता है, बिकॉज गॉड हैज़ गिवन गुड फीलिंग्स टू ऑल, good qualities to all. So that goodness never comes to an end. It is just like a flame which can become dim but cannot be extinguished. उसको बुझाया नहीं जा सकता. तो क्या प्रॉब्लम है दैट अगर उनको कुछ सिंपैथी, कोई अटैचमेंट या कोई उनकी हिस्ट्री को प्रोब करना चाहता है, उनके साथ लव की फीलिंग या ट्रस्ट करता है उनके ऊपर, तो दैट goodness is once again awakened in the mind of that person who is going on the wrong track. So in this story what we see that there is a young boy, Hari Singh, who works as a thief, and in the very beginning we are told that he says that I was still a thief when I met Anil. He met a person, Anil, who was 25 years old, a tall, lean fellow, and was very easygoing person, and he felt that he could be robbed easily and he could win his confidence easily. They met at a wrestler match, and he started flattering him, making him friend so that he could easily rob him. And when they started from that place, he followed him and he told him that he wanted to work with him as a servant. When Anil refused, that he could not afford, he said, at least you can give me food for that. And with that, Anil agreed. So we have reached to this point when we have seen that in the last lines of the first page, he says, I gave him my most appealing smile and I want to work for you, I said, but I can't pay you. He refused that he could not pay. And Hari just smiled and asked, whereas Anil was not ready to keep him as servant. I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? We have read this part also, but still to link you, I'm going to read it again. तो what Anil thought that he had misjudged the man, कि उसको लगा कि शायद उसकी जजमेंट गलत हो गई है, कि ये आदमी तो शायद ऐसा नहीं है कि वो उसके पास से इसको कुछ मिल सके, अच्छा पैसा वगैरह नहीं है. Then Anil asked, can you cook? I can cook. I lied again. तो उसने फिर से झूठ बोल दिया कि मैं कुक कर सकता हूँ. पहले उसने कब झूठ बोला था? When he told about his name, because he used to change his name every time, ताकि वो अपने पुराने एम्प्लॉय से या पुराने जो लोग जिनको वो रॉब करके भागा होता है उनसे बच पाए. So every month he used to change his name. Once again he lied. He said, I can cook. If you can cook, then maybe I can feed you. कहता अगर आप कुक कर सकते हो तो मैं आपको शायद खाना भी खिला सकता हूँ. From here we have to start. He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. And Anil took him to his room that was over the Jamuna sweet shop. Underline this name, where his room was. And he told him that he could sleep in the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible, because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. लेकिन उसको पूरा विश्वास था कि जो उसने खाना बनाया उस दिन, दैट वॉज नॉट ईटेबल, खाने के योग्य ही नहीं था, बिकॉज ही गेव दैट फूड टू अ स्ट्रे डॉग, गली में आवारा जो डॉग घूम रहा था उसको दे दिया. एंड ही टोल्ड हरी टू लीव, टू बी ऑफ मतलब भाग जाओ यहाँ से. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he could not help laughing. But he just kept on laughing, smiling, और उसके आसपास घूमता रहा अनिल के, so that he could have
flattery, and he would be allowed to stay there. And Anil also could not help laughing. वो भी बिना हंसे नहीं रह सका because he was a good-natured man. Later he patted me on the head and said, "Never mind, he would teach me to cook." तो बाद में एडजस्ट कर लेता है और उसको क्या कहता है कि you should not mind, I will teach you how to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers, no down. He, along with the cooking, he even taught Hari Singh to write his name, and he told him that he would teach him to write whole sentences, complete sentences कैसे लिखे जाते हैं, numbers कैसे add कर किए जा सकते हैं. That means he started giving him education. He was uneducated, तो उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, number add करना, how to write the name, how to write sentences. I was grateful, and Hari was, I hear Hari Singh, he said I was grateful means very much thankful. Underline the spellings, great, G-R-A-T-E, grateful means very much thankful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. Underline that he realized the importance of education here. तो उसको क्या महसूस हुआ, उसको समझ आई that once I could write like an educated man, कि अगर एक पढ़े लिखे इंसान की तरह वो लिख सकेगा तो there would be no limit to what I could achieve. तो कोई लिमिट नहीं है कि वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है. अभी तो उसको जो चोरी से पैसा मिल रहा है वही है ना. He thought that he could get much more money if he get education. So he was ready to stay with Anil. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. Underline again, he usually keep a profit of ₹1 a day, क्योंकि जो चोरी की आदत थी उसकी वो इतनी जल्दी नहीं जाने वाली थी. Though he realized about the education and he was very happy to stay with Anil, क्या करता, मॉर्निंग में चाय बनाता और उसके बाद वो दिन की सप्लाईज, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो खरीदने के लिए बाजार चला जाता. एंड फ्रॉम दैट मनी विच वॉज गिवन टू हिम टू बाय दोज डेज सप्लाईज, ही यूजुअली मेक ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे, कि एक दिन में वो ₹1 अपने लिए बचा ही लेता था उसमें से. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. लेकिन हरी सिंह को ये भी पता था कि अनिल इस चीज़ को जानता था. अनिल न्यू दिस थिंग that he was making money out of that. He was making a little money. कितना पैसा, about ₹1 a day. एक दिन में लगभग वो ₹1 बचा रहा था अपने लिए उस पैसे से जो भी उसको सामान खरीदने के लिए दिया जाता था. And he felt that Anil knew this, but he did not seem to mind, क्योंकि उसने कभी इस बारे में बात नहीं करी. So he felt that he did not mind कि अगर उसमें से ₹1 बचा भी रहा है तो. Anil made money by fits and start. Now we are told about his work. What did Anil do? Anil क्या काम करता था और कैसे पैसे कमाता था? He made money by fits and starts. Fits and start means not regularly. उसको पैसा जो था वो regularly कोई income salary उसको monthly नहीं मिलती थी. He would borrow one week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. तो इस डिस्कशन से क्या पता चलता है कि शायद वो ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था. दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज वे ऑफ मेकिंग अ लिविंग. लिविंग मतलब जीविका, अपनी रोजी रोटी कमाने का बड़ा अजीब तरीका था. और ही वॉज वेरी jolly and free by nature. He never worried about the money. What did he do? He would borrow one week, एक week वो किसी से उधार ले लेता, lend the next, अगले week किसी को उधार दे देता. And he kept worrying about his next check, और next check की इंतजार करता कब उसको अगला पैसा मिलेगा. And as soon as it arrived, he would go out and celebrate. जैसे ही उसको पैसा मिलता वो बाहर घूमने निकल जाता और सेलिब्रेट करता फ्रेंड्स के साथ. That means he never tried to keep that money for saving. बहुत ज़्यादा पैसा जोड़ने में या सेव करने में उसका विश्वास नहीं था. जब भी उसको चेक मिलता वो उसको एंजॉय करता है, सेलिब्रेटेड विद हिज फ्रेंड्स, एंड वॉज नॉट गेटिंग एनी रेगुलर इनकम. जब होते तो वो दूसरों को उधार दे देता, जब नहीं होते तो वो दूसरों से उधार ले लेता. एंड इट सीम्ड दैट ही राइट्स फॉर मैगजीन्स. One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. और एक शाम हरी क्या नोट करता है कि वो आया घर और उसके पास नोटों का बंडल था. एंड ही टोल्ड दैट ही हैड सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. एंड
हरी सिंह saw that he kept the money under the mattress. गद्दे के नीचे उसने वो पैसे रखे. I hear Hari Singh. He saw that money was kept under the mattress. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. और अब कहते हैं मुझे काम करते हुए करीबन 1 मंथ हो गया था, लेकिन मैंने उस 1 रुपए जो कि पैसे उसको मिलते थे सामान खरीदने के लिए, उसमें से बचाकर वो अपने लिए रखता था, उसके अलावा कुछ भी गलत नहीं किया था. इन माई लाइन ऑफ वर्क मीन्स इन स्टीलिंग. उसकी लाइन क्या थी काम की? स्टीलिंग, चोरी करना. लेकिन उसने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया था एक्सेप्ट दैट 1 रुपी. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. जबकि उसके पास हर मौका था ऐसा काम करने का, वो कर सकता था. स्टीलिंग किसी तरह से भी उसको धोखे से चोरी कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. किसी भी टाइम वो कुछ भी गलत काम कर सकता था, चोरी कर सकता था, क्योंकि अनिल ने उसको अपने घर की कीज दी हुई थी और वो किसी भी टाइम आ सकता था, जा सकता था, जैसा कि उसका मन करता. He was the most trusting person I had ever met. Underline Anil. He here refers to Anil. Anil was the most trusting person Hari Singh had ever met. कि आज तक जितने लोगों के पास भी वो गया था, ये सबसे ट्रस्टवर्दी पर्सन जो था उसको मिला था अभी तक लाइफ में. एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम. इसीलिए उसको क्या लग रहा था कि इसको रॉब करना, इसको ठगना या इसके घर में चोरी करना सबसे ज़्यादा मुश्किल था. It is easy to rob a greedy man. So please note down in these lines what he is telling कि कैसे लोगों को रॉब करना जो है वो easy होता है और कैसे लोगों को रॉब करना मुश्किल हो जाता है. It is easy to rob a greedy man. एक लालची आदमी है, उसको रॉब करना बहुत आसान है, because he can afford to be robbed, क्योंकि उसके पास पैसा है और उसको रॉब किया जा सकता है. But it is difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. और किसी केयरलेस मैन को कहते रॉब करना जो है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपने उसको ठग भी लिया, आपने कोई उसके पैसे चुरा भी लिए बीच में से, ही डज नॉट इवन नोटिस, वो नोटिस ही नहीं करता इस चीज़ को. देन व्हाट हैपन्स, द पर्सन हु इज रॉबिंग और हु इज स्टीलिंग द मनी, ही लूजेज द प्लेयर ऑफ दैट वर्क. उसको भी अब वो अपना काम करने में खुशी मिलती है, प्लेयर मिलता है, लेकिन जब दूसरे इंसान को पता ही नहीं चला कि आपने चोरी कर ली, तो उसका वो प्लेयर जो है वो भी खत्म हो जाता है. सो इट इज ऑफ नो इंटरेस्ट. दैट्स व्हाई ही फेल्ट दैट टू रॉब अनिल is very difficult because he never knows that he has been robbed. केयरलेस था, उसको पता ही नहीं था, जब भी पैसे आए वो घूमने चला जाता और एंजॉय करता था. ही नेवर सेव्ड दैट मनी, और उनको गिन गिन कर नोटों को रखता था, ऐसा कुछ नहीं था. ही नेवर न्यू व्हाट वाज केप्ट अंडर द मैट्रेस, कितने पैसे रखे थे या क्या था, ऐसा कुछ नहीं पता था. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रॉब हिम. Well, it is time I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he does not even pay me. So what Hari Singh thought, he says, well, it's time I did some real work, कि मैं कुछ सचमुच में काम करूँ. काम मतलब कुछ चोरी करूँ उसकी. I told myself, अपने आप को कहता मैंने समझाया, I'm out of practice, क्योंकि अब उसकी प्रैक्टिस खत्म हो चुकी थी, महीने से ज़्यादा उसको यहाँ हो गया था. ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, कोई स्टीलिंग नहीं करी थी, तो कहता मेरी प्रैक्टिस खत्म हो रही थी. एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स. फिर दूसरी बात क्या थी, कहता अगर मैं नहीं अगर चोरी करता तो ही वुड स्पेंड द मनी ऑन हिज फ्रेंड्स. जाएगा, सेलिब्रेट करके आ जाएगा, खत्म करके आ जाएगा पैसे. तो आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे, और मोर ओवर ही वॉज नॉट पेइंग एनीथिंग. कोई उसको सैलरी भी नहीं दे रहा, वो उसके पास काम कर रहा था, उसका मार्केट का काम सारा करता, उसके लिए खाना बनाना शुरू कर दिया था. अब उसने, चाहे कि अनिल ने उसको सिखाया था. अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. एक दिन क्या देखा उसने कि अनिल सोया हुआ था और बालकनी में से मूनलाइट जो थी वो अंदर एंटर कर रही थी कमरे में. I sat up on the floor considering the situation, और पास खड़ा उसके सिचुएशन को समझ रहा है, सोचने की कोशिश कर रहा है कि what to do. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. क्या सोच रहा है कि अगर मैं अभी पैसा यहाँ से लेता हूँ, चुराता हूँ. उसने देखा ना बंडल ऑफ नोट्स उसने मैट्रेस के नीचे रखा था, उसको पता था, और वो सोच रहा है कि अगर वो पैसा वहाँ से उठा लेता है और 10:30 की एक्सप्रेस लखनऊ को जाने वाली ट्रेन जो है उसको मिल सकती है. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, आई क्रेप्ट अप टू द बेड.
और ब्लैंकेट में से निकला और बेड के पास धीरे धीरे चलता हुआ पहुंच गया। क्या देखता है कि अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, वो बड़ी शांति से आराम से सोया हुआ है। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, बिल्कुल चेहरा साफ है। अनलाइंड मीन्स विदाउट एनी वरी, विदाउट एनी टेंशन, ही वॉज स्लीपिंग। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, द माइंड वॉज मोस्टली स्कार्स। जबकि कहता मेरे चेहरे में उसकी बजाय ज़्यादा मार्क्स थे, ज़्यादा निशान थे, बिकॉज दोज वर स्कार्स। स्कार्स होते हैं जैसे कोई चोट लगी हुई है या गिरने से या किसी के पकड़ने से उसको कोई चोट लगी है, वैसे निशान थे उसके फेस के ऊपर। जबकि अनिल जो था वो पीसफुली, बड़े आराम से, विदाउट एनी टेंशन एंड वरी, ही वॉज स्लीपिंग। माई हैंड slid अंडर द मैट्रेस searching for the notes, and he just started moving his hand under the mattress and was trying to get the notes. When I found them, I drew them out without a sound. और बिना आवाज किए इसने वो नोट निकाल लिए। Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. और क्या नोट करता है कि अनिल just took a deep sigh, गहरा सांस लिया उसने नींद में ही, और he turned his side and now he turned towards हरी। जिस तरफ हरी खड़ा था उस तरफ उसने मुंह कर लिया। I was startled and quickly crawled out of the room. He got startled means got surprised, एकदम घबरा जाता है कि कहीं वो उठ ना जाए, और quickly he came out of the room. When I was on the road, I began to run. घर से बाहर आ जाता है उसके पैसे चुराकर और सड़क पर आकर भागना शुरू कर देता है ताकि वो जल्दी से जल्दी स्टेशन पहुंचे और ट्रेन पकड़ ले। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama. तो उसने क्या किया, उन नोट्स को अपनी वेस्ट में पजामा के स्ट्रिंग जैसे नाला होता है ना उसके साथ बांध लिया। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। फिर उसने सोचा कि नोट काउंट तो करे जाएं, कितने पैसे हैं। थोड़ा सा धीमे चलना शुरू करता है, नोट निकालता है। 600 रुपीज इन 50s। अंडरलाइन कितने पैसे थे जो कि वो चुरा कर भागा था, 600 रुपीज इन 50s। 50 के नोट थे और 600 रुपीज थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच herb for a week or two, and what idea came in his mind, with those 600 rupees he could live like a rich herb, ऑयल रिच herb। कि अरब अरब के जो ऑयल बेचने वाले लोग होते हैं, तेल अरब से मिलता है ना, अरब कंट्रीज में से, तो उसमें जो ऑयल जैसे पेट्रोल वगैरह हमारा आता है, तो दोज कंट्रीज आर रिच इन दीज, एंड ही थॉट दैट ही वाज जस्ट लाइक एन herb having money, and he could spend a life like a rich man for a week or two. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, क्योंकि वो स्टीलिंग की उसकी हैबिट थी, तो टिकट तो खरीदना बहुत दूर की बात, मैंने कहता कभी टिकट नहीं खरीदी थी। जब मैं स्टेशन पर गया, I did not stop at the ticket office but dashed straight to the platform. सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ गया। The लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out. क्या देखता है कि लखनऊ एक्सप्रेस जो कि उसने सोचा था कि 10:30 पे इसको मिल जाएगी, that was moving out. प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रही थी स्टेशन से। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. कहता ट्रेन अभी बहुत तेज स्पीड से नहीं जा रही थी, अभी इसको स्पीड पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और मैं जंप करके एक डिब्बे में चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचा गया। हेजिटेटेड मीन्स अपने आप को कंट्रोल किया, थोड़ा सोच में पड़ गया कि क्या करूं। फॉर सम रीजन आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट वाज द रीजन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि उसके दिमाग में क्या बात आई। ही हिमसेल्फ डिड नॉट अंडरस्टैंड, and I lost the chance to get away. And what happened? The train went away and he did not jump into the train, he did not catch the train and he lost the chance to get away. उसका जो मौका था उसके पास ट्रेन में चढ़कर वहां से निकलने का, वो निकल गया। He lost that chance. पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, that he hesitated and he did not go into the train. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जैसे ही ट्रेन गई, everyone had gone. The platform was deserted. खाली था, कोई नहीं था प्लेटफॉर्म के ऊपर। I had no idea where to spend the night. और उसको कोई आइडिया नहीं था उसके दिमाग में कि वो रात कहाँ पर बिताएगा। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. See the idea in his mind now, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था, कभी भी उसने किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं बनाई थी, बिकॉज ही कुड बी आइडेंटिफाइड बाय एनीवन, कोई उसका शिकायत कर देगा या पकड़ा जाएगा। सेड आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग, ये विश्वास करते हुए, दैट फ्रेंड्स आर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि हेल्प करने की बजाय जो फ्रेंड्स थे दे वर क्रिएटिंग मोर ट्रबल, दैट कुड बी अ ट्रबल फॉर हिम बिकॉज ही कुड बी कॉट।
and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और ना ही वो स्टेशन के पास किसी होटल में रुकना चाहता था ताकि कोई उसकी स्टे को देखकर क्यूरियस हो या एक्साइटेड हो, उसके बारे में जानना चाहे. So he did not want to stay in any of the hotel also. The only person I knew really well was the man I had robbed. सिर्फ एक ही आदमी था कहता जिसको मैं अच्छे से जानता था. एंड हु वाज दैट मैन whom he had robbed? That was अनिल only. अनिल को ही वो अच्छे से जानता था. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. So क्या किया उसने, फिर से स्टेशन से वापस चल पड़ता है. And he was walking through the bazaar. In my short career as a thief, बहुत छोटी सी एज थी उसकी. What is the age told to us in the very beginning? 15 years only. और बहुत लंबा उसका करियर नहीं था as a thief. I had made a study of men's faces when they had lost their goods, but he had a lot of experience in those years. बड़ा experience था, उसने लोगों के चेहरों को पढ़ा था जब उनकी चीज़ें खो जाती थी, मतलब चोरी हो जाती थी या कोई उनको रॉब कर लेता था, तो what type of expressions people have. He had read many faces. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. Underline what he had read, what experience he had got. कि जो greedy man है वो डर की भावना दिखाते हैं कि उनको हमेशा डर लगा रहता है, लालच है उनके मन में, हमेशा उनको डर रहता है कि कोई उनकी चोरी ना कर ले. The rich man showed anger, और जो अमीर आदमी होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं इस चीज़ के ऊपर when they are robbed. The poor man showed acceptance, लेकिन जो गरीब आदमी है उसको पता है वो कुछ नहीं कर सकता. He has to show acceptance, उसको स्वीकार करना पड़ता है कि जो भगवान को मंजूर था वो हो गया, ऐसा कह के वो चुप कर जाता है. But I knew that Anil's face when he discovered that theft would show only a touch of sadness. But he knew very well about Anil also that what he would feel when he would discover about this theft, कि जब उसको पता चलेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, what type of expressions and the feelings he would have on his face. He would show only a touch of sadness. वो सिर्फ उदास होगा. He would not be having fear, he would not be angry, and he would have only the feeling of sadness. And that sadness not for the loss of money but for the loss of trust. सिर्फ पैसा खोने का उसको लॉस का उदासी नहीं होगी, इस चीज़ की वजह से वो टेंशन में नहीं आएगा कि उसके पैसे चोरी हो गए, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. लेकिन किस वजह से उदास होगा? बिकॉज ही हैड लॉस्ट द ट्रस्ट विच ही हैड पुट इन दैट पर्सन, बिकॉज ही ट्रस्टेड हरी सिंह. हरी सिंह के ऊपर उसने विश्वास किया, तभी उसको पैसे दे देता था कि सामान खरीद लाए, और उसके घर की चाबी उसके पास थी, वो जब मर्जी आ जा सकता था. उसने पूरी तरह से हरी सिंह को विश्वास किया था उसके ऊपर. एंड नाउ व्हेन ही वाज रॉब्ड ऑफ दैट ट्रस्ट, कि वो विश्वास जो था उसका, उससे जब वो ठगा जाएगा, उस लॉस के बारे में वो उदास हो जाएगा. सो प्लीज नोट डाउन व्हाई ही वुड बी सैड, व्हाट एक्सप्रेशन ही वुड शो. एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस, not for the loss of money but for the loss of trust which he had put on Hari Singh. I found myself in the मैदान and sat down on a bench. चलते चलते क्या सोचते सोचते हरी सिंह के बारे में वो एक खुले ग्राउंड में, मैदान में पहुंच जाता है. And there was a bench, he sat down there. The night was chilly, it was early November, नवंबर का मंथ था, सर्दियों की रात थी. And a light drizzle added to my discomfort. और क्या देखता है कि उसके लिए और परेशानी क्या हुई, डिस्कम्फर्ट क्या हुआ? अ लाइट डिजल, दैट मीन्स अ स्लो ड्रिजलिंग स्टार्टेड. हल्की हल्की बारिश जो थी, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई, स्टार्टेड ड्रिजलिंग. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली, लेकिन धीरे धीरे ये बारिश तेज हो गई. माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन, उसके कपड़े जो थे, शर्ट एंड पजामा, दैट वॉज स्टक टू हिज स्किन, गिले हो गए, भीग गए, और वो पूरी तरह उसके शरीर के साथ चिपक गए. And a cold wind blew the rain across my face, और बहुत तेज ठंडी हवा जो थी वो चलने लगी. I went back to the bazaar, sat down in the shelter of the clock tower. रास्ते में एक clock tower था. Sat there again for a shelter from the rain. Walking through the bazaar, the clock showed midnight. और क्या टाइम देखता है क्लॉक पे ऊपर? मिडनाइट का टाइम हो चुका था. एंड आई फेल्ट फॉर द नोट्स, ने फिर से चेक किया कि क्या नोट्स उसके पजामा की स्ट्रिंग के साथ बंधे हुए थे. They were damp from the rain, and what he noticed that the notes were damp with the rain. बारिश की वजह से पूरी तरह से भीग गए थे. Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. क्या सोच रहा वहाँ बैठ के
कि ये अनिल का पैसा है और शायद वो सुबह मुझे 2 या 3 रुपए दे देता कि जाओ सिनेमा देख आओ, बिकॉज ही वॉज काइंड बाय नेचर. एंड नाउ व्हाट ही इज फीलिंग दैट ही वाज हैविंग ऑल द मनी विद हिम. कितना 600 रुपीज उसके पास थे. आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर. कहता मैं अब खाना नहीं बना सकता उसके लिए, मैं बाजार नहीं जा सकता उसका सामान खरीदने के लिए, और ना ही मुझे अब सेंटेंसेस जो हैं वो सीखने को लिखने को मिलेंगे. I had forgotten about them in the excitement of the theft. और इस चोरी की एक्साइटमेंट में कि उसको 600 रुपीज़ नज़र आ गए. उसकी एक हैबिट थी, कहते ना आपने पंजाबी में भी पढ़ा होगा कि वादड़ियाँ सुजादड़ियाँ निबन सिरा दे नाल, कि जो आदत पड़ जाती है, गंदी आदतें जो हमें गलत आदतें पड़ जाती है ना बचपन से शुरू से, वो बहुत जल्दी नहीं ख़त्म होती. हम आसानी से उस आदत को छोड़ नहीं सकते. तो क्या है, उसको भी लगा कि चोरी की उसकी आदत थी, एकदम से कैसे वो छोड़ देगा. तो एक तरह से एक्साइटेड हो गया था कि 1 महीने से उसने कुछ गलत काम नहीं किया था, चोरी नहीं करी थी. लेकिन उस एक्साइटमेंट में ये वो भूल गया था कि उसको बेनिफिट कितना हो रहा था. वहाँ पे उसको खाना मिल रहा था, बाजार जाता था, उसमें से वो पैसे बचा कर रख रहा था, पूरा ट्रस्ट था, उसको एक घर मिल गया, और मोर ओवर ही वॉज गेटिंग एजुकेशन. सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि अनिल वॉज टीचिंग हिम. एंड whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. Underline, he again realized the importance of education while sitting there, कि जो complete sentences वो सीख रहा था, अनिल उसको सिखा रहा था, that could bring him more than a few hundred rupees. कि 600 रुपीज़ तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, कि अगर वो एक एजुकेटेड मैन बन जाता है, he would get a good job, अच्छी उसको कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा, and he would be able to earn more. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. अब उसको लग रहा था चोरी करना बहुत आसान बात है, सिंपल सा काम है, और चोरी करके पकड़े जाना जो है उससे भी आसान है. अगर मौका लगा तो he could be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. Now he realized the importance of a respectable person living in the society, thinking that if he got education, he would become a big man, and that would be real thing in his life, and that would make him a clever and respected man. That was great thing. To steal and to be caught is very simple, but to be a big man, a clever and respected man in the society is something great. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. And he realized his mistake. He repented for that, for the action which he had done. जो काम उसने किया था, कि जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर विश्वास करा, सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र वही उसका व्यक्ति था, उसके ऊपर विश्वास किया. आज तक किसी आदमी के ऊपर उसने इतना विश्वास नहीं किया था जब से मिला था, और अनिल ने भी उतना ही विश्वास उसको दिखाया. तो अब उसको रियलाइज हुआ कि उसने गलत किया था उसके साथ, बिकॉज ही वॉज टीचिंग हिम, ही वॉज लर्निंग मैनी थिंग्स फ्रॉम अनिल. So he thought that he should go back to Anil. He told to himself, and why he should go, only to learn to read and write, ताकि वो पढ़ लिख सके, अच्छा इंसान बन सके, एजुकेटेड बन सके, and he could earn much more than these 600 rupees. So when he realized, he hurried back to the room, feeling very nervous. जल्दी से वापस जाता है घर की तरफ, उसके कमरे की तरफ पहुंचता है घबराया हुआ. For it is much easier to steal something than to return it undetected. Underline, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, कि उसको पता था ये भी बात कि चोरी करना बहुत आसान है, लेकिन बिना डिटेक्ट किए, बिना पकड़े गए, बिना किसी को पता चले इस चोरी के बारे में, उस चीज़ को वापस करना जो है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. क्या वो चाहता था कि वो पैसे वापस वहाँ मैट्रेस के नीचे रख दे, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम. सो ही गॉट नर्वस. आई ओपन द डोर क्वाइटली, चुपचाप उसने दरवाज़ा खोला. देन स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे में खड़ा हो जाता है. इन क्लाउडेड मून लाइट, अभी भी चांद की रोशनी थी, बादल भी थे. अनिल वॉज स्टिल अस्लीप. उसने देखा दैट अनिल वॉज स्टिल स्लीपिंग. आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, बिस्तर के सिर की तरफ, जिस तरफ उसका सिर था उस तरफ गया. एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, हाथ जो थे नोटों के साथ बाहर आए. उसने नोट निकाले अपने पजामे के वेस्ट के साथ, जहाँ उसने बांधे हुए थे स्ट्रिंग के साथ. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और जैसे ही उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया, ही फेल्ट अनिल्स ब्रीदिंग, उसके सांस लेने की फीलिंग जो थी उसको महसूस हुई अपने हाथ के ऊपर. आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, and he was still there for a minute. What to do? Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. उसने किनारा उठाया मैट्रेस का और नोट्स जो थे वापस उसके अंदर नीचे रख दिए.
I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. Now, after that, he went to sleep and knowingly he woke up late. जल्दी नहीं उठा, लेट उठा ताकि कुछ बात ऐसी ना हो, डिस्कशन ना हो अनिल के साथ। और उसने क्या देखता है जब लेट उठता है, तो अनिल ने अपने लिए चाय खुद बना ली थी। He stretched out his hand towards me. अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा था अनिल। There was a 50 rupee note between his fingers. और क्या था उसके हाथ में? 50 रुपये का एक नोट था। My heart sank. I thought I had been discovered. हरी सिंह, his heart sank मतलब घबरा गया, उसका दिल जो था डूब रहा था, बिकॉज उसने क्या सोचा कि उसको चोरी के बारे में पता चल गया था। I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. And what did अनिल से? अनिल कहता है कि मुझे कुछ पैसे कल मिले थे, मतलब मैंने कुछ पैसे कमाए हैं। जैसे उसको पता था कि कभी कभी उसको पैसे मिलते थे, रेगुलर इनकम नहीं थी, तो उसको बता रहा है कि नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, कि अब मैं तुम्हें रेगुलर पेमेंट करूंगा, मंथली पेमेंट दूंगा। माई स्पिरिट रोज, बट वेन आई टुक द नोट फेल्ट वेरी हैप्पी। उसके लिए बहुत ग्रेट फीलिंग उसके माइंड में आ रही है, रिस्पेक्ट आ गई उसके माइंड में। स्पिरिट्स रोज मतलब एक रिस्पेक्ट की फीलिंग अनिल के लिए हरी सिंह के माइंड में आ गई कि वही आदमी जिसकी वो चोरी कर रहा था, वो उसके बारे में अच्छा सोच रहा है और उसको 50 रुपीज़ दे रहा है और उसको कह रहा है कि एवरी मंथ नाउ ही विल बी पेड। बट वेन ही टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। क्या देखता है कि वो अभी भी रात की बारिश की वजह से भीगा हुआ था नोट जो उसको पकड़ाया गया। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। और साथ ही अनिल क्या कहते हैं कि टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, मतलब उसको एजुकेट करने की बात कर रहा है कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। एंड हरी सिंह रियलाइज दिस थिंग दैट अनिल न्यू एवरीथिंग। अनिल को सब पता था कि नोट उसने चुराए थे, क्योंकि वो नोट भीगे हुए थे, अदरवाइज मैट्रेस के नीचे पड़े हुए नोट गिल्ले कैसे हो गए। सो अनिल न्यू एवरीथिंग बट ही डिड नॉट say anything, he did not talk about that, neither his lips nor his eyes showed anything। और उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया ऐसा, ना अपने होंठों से, मतलब ना कुछ बोलकर, ना ही आंखों से उसने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया that he should realize that he had done something wrong, और उसको वो रियलाइज करवाए कि तुमने चोरी करी थी। He did not talk about that. I smiled at Anil in my most appealing way, and once again he looked at Anil and smiled as he usually does in his way, and the smile came by itself without any effort. And Anil also started smiling, and that was a natural smile. It was not artificial smile. Without any effort, the smile came by itself. उसके मुंह से भी मुस्कान जो थी, स्माइल जो थी, वो अपने आप आई। So he realized his mistake, that he had done something wrong by stealing or by robbing Anil, who had faith on him and who was thinking good of him. And he realized the importance of education. Both the things just probed him. दोनों चीजें ने उसको probe करा, उसको अंदर से झंझोड़ दिया और सोचने के लिए मजबूर किया कि वो क्या काम कर रहा था। एक चीज तो अनिल का ट्रस्ट, जिसने उसको ऊपर इतना विश्वास किया, उसको अपने घर में रखा, चाहे उसको खाना नहीं भी बनाना आता था, उसको सिखाया खाना बनाना, उसके ऊपर विश्वास करके उसको पैसे दे देता कि गो एंड बाय द थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। ही गेव द की टू हिम, ही नेवर टॉक्ड एनीथिंग रॉन्ग, ही वाज वेरी काइंड एंड सिंपैथेटिक टू हिम, एंड he even was thinking about paying him regularly whenever he will get the money. And the most important thing, he was trying to teach him, he was educating him, which made him realize that he could become a rich man, could become a respectable man in the society, because stealing is a very simple thing and to be caught is more simple, but to become a clever and respectable person in the society is something great. So we have finished the story, and we have seen the great ideas given through the mouth of a thief, and his goodness that was prevalent in him, that was awoken by the trust and the faith of Anil when he realized about the importance of education also. Now, please come with the reading of the chapter and find out the questions. We'll discuss the questions tomorrow. If you have any doubt, you can ask your problem.